اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر بھر میں مظاہرے، ریلیوں اور عوامی اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے۔ کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ چاروں صوبوں گلگت بلتستان کے وزراء شریک ہوئے۔ مظفر آباد، میرپور، نیلم باغ، کوٹلی، نکیال، سماہنی سمیت دیگر مقامات پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والے تمام انٹری پوائنٹس پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ کوہالہ پل پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ مظفر آباد میں آزادی چوک میں پاکستانی قومی ترانے کے بعد ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ کشمیری پناہ گزینوں نے مرکزی شاہراہ پر مارچ بھی کیا۔ میرپور آزاد کشمیر میں منگلا پل پر کشمیری اور پاکستانی قوم نے تاریخی اظہار یکجہتی کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود نے بھی منگلا پل پر آ کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے بہادر عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وادی نیلم، باغ، کوٹلی، سماہنی اور دیگر بڑے شہروں میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز چائنا چوک سے ہوا۔ ریلی میں طلباء و طالبات، سیاستدان، وفاقی وزراء اور سول سوسائٹی کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ اس پر مزید تفصیل بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے فیضان راجہ۔ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے 5 فروری کو آج جو ہے وہ ریلی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جہاں پہ ڈی چوک، چائنا چوک میں یہاں پہ بہت بڑی تعداد موجود ہے، طلباء کی، بچوں کی، بڑوں کی، جنہوں نے پلے کارڈ اٹھائے رکھے ہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان کی صدائیں یہاں پہ بلند ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ وزراء کی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے یہاں پہ شرکا سے خطاب کیا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلی کا جو تمام تھا وہ چائنا چوک سے شروع ہوا، جو کہ ڈی چوک کے پاس جہاں میں موجود ہوں، میرے بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ کشمیر کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس طرح پاکستان کے جھنڈے، ایک جھنڈے کے سائے تلے جو ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں اور یہاں پہ بچے، بڑے، بزرگ، سب کی خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ وزراء نے یہاں پہ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی اور یہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ یہاں پہ کافی زیادہ لوگوں کی تعداد موجود ہے۔ جی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کشمیری عوام آزادی اظہار رائے سے کم پر راضی نہیں ہوں گے۔ اقوام عالم بھارت پر دباؤ ڈالے کہ کشمیری عوام کو ان کا حق دیا جائے۔ کراچی میں پیپل سرنگی سے مزار قائد تک یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں صوبائی وزراء سعید غنی، ذوالفقار علی شاہ اور جام خان شورو سمیت چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ شریک تھے، جبکہ آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی، کمشنر کراچی اور ڈی سی ساؤتھ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریلی کے شرکا نے کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جب تک دنیا میں کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیری عوام پر مظالم ڈھا رہا ہے، مگر کشمیر تمام مظالم کے باوجود آزادی کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ عہد کرتے ہیں کہ جو ہندوستان کے مظالم ہیں، جو انسانی حقوق کی پامالی ہے کشمیر میں، انلیگلی آکوپائڈ انڈین کشمیر میں، اس کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں اور عالمی دنیا کو کہتے ہیں کہ جو وعدہ کشمیر کے ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہوا تھا اس وعدے پہ عمل کریں، کشمیر کے لوگوں کو حق خود اختیاری، خود ارادیت دیا جائے اور وہ فیصلہ کریں اور انشاءاللہ ان کا فیصلہ یہی ہوگا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جبکہ تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں استور سے رفیع اللہ، ہنگو سے اسار الحق، سرگودا سے ملک اصغر اور منڈی بہاؤالدین سے طارق محمود بھٹی۔ ملک بھر کی طرح ضلع استور میں بھی کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے طور پہ یوم یکجہتی بھرپور انداز میں منایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس سے ریلی برآمد ہوئی، ایک جلسے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس ٹھٹرتی سردی میں اپنے کشمیریوں بھائیوں سے یکجہتی کے حوالے سے لوگوں میں کافی جوش تھا، جذبہ تھا اور یہاں پہ مختلف جو مقررین تھے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جو کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ بھارت کی طرف سے مسلسل کشمیر کے اوپر ہونے والا ظلم کے حوالے سے انہوں نے بھرپور انداز میں مذمت کی۔
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला हंगो और कबायली ज़िला औरंगज़ई में भी आज 5 फरवरी यौमी यकजहती कश्मीर के हवाले से मनाया जा रहा है। हंगो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में और लोअर औरंगज़ई कलाया हेड क्वार्टर में यौमी यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी परचम और पाकिस्तानी परचम की परचम कुशाई की गई और कश्मीरी शहदा खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीबात में कबायली अमायदीन और इलाका मशरन का कहना था कि कश्मीरी भाइयों के आज़ादी तक हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शाहीनों के शहर सरगोदा में भी आज 5 फरवरी को कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के तौर पर तकारीब का इनकाद किया जा रहा है। जो शहर की सबसे बड़ी मरकज़ी तकरीब वो आर्ट्स कौंसल सरगोदा में मुनक्किद की गई। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और कश्मीर का परचम भी लहराया गया। शुरका ने जो है कश्मीरी मुसलमानों से भरपूर इजहार यकजहती करते हुए भारतीय फ़ौज की तरफ से जो उन पर मज़ालम किए जा रहे हैं उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर की तरह मंडी बहाउद्दीन के अंदर भी यौम कश्मीर जो है वो इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और इस हवाले से जो मरकज़ी तकरीब है जो ज़िला कौंसिल हाल मंडी बहाउद्दीन में मुनक्किद कौमी तराना बजाया गया, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। उसके अलावा कश्मीरी गीत जो है वो भी इसके अंदर बजाया गया। कुछ बच्चियां जो है उन्होंने कश्मीरी लिबास पहनकर इस तकरीब के अंदर शिरकत की और कश्मीर के साथ इजहार यकजहती किया। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि पाकिस्तान की सारी आवाम जो है वो इस आज़ादी की तहरीक में कश्मीरी आवाम के साथ खड़ी है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि पंजाब में आलू की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आलू की 12 मिलियन मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार हुई। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 25% नुमाया इजाफा हुआ है। आलू की बरामदात के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। इस्तेहकाम और काश्तकारों को मुनासिब मुआवजे की अदायगी यकीनी बनाई जा रही है। कज़ाकिस्तान के साथ आलू की बरामदात पर अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी आलू की बरामद के सिलसिले में इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 216 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क्स को शदीद धचका, क़यादत और कमांड सिस्टम तबाह कर दिया गया। फितनाल हिंदुस्तान की बलूचिस्तान में बदमनी की कोशिशें खाक में मिला दी गईं। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों को बैरूनी सहूलतकारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ऑपरेशन के दौरान 36 मासूम शहरी शहीद हुए। मादरे वतन के दिफा में 22 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा की कुर्बानियों को सलाम। कौम अहले खाना के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और अंदरूनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि कोई दहशतगर्द और सहूलतकार नहीं बख्शा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी जवाज़ के तहत भी कबूल नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावराना महारत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने CMH कोयटा का दौरा किया। उन्होंने फ़ौज, FC और पुलिस के ज़ख्मी अहलकारों से मुलाकात भी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 की तकमील पर सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से फितनाल हिंदुस्तान की मज़मूम कोशिश नाकाम हुई। बैरूनी पुष्टपनाही में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अवलीन तरजीह है। इंटेलिजेंस कार्रवाइयों से बैरूनी पुष्टपनाही में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स की कमर तोड़ दी गई। सदर मुमलिकत का शहीद होने वाले शहरियों और सिक्योरिटी अहलकारों को खराज अकीदत, अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि फितनाल हिंदुस्तान के 216 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हासिल की है, बड़ी कामयाबी हासिल की है। बलूचिस्तान में बेअमनी की साजिश नाकाम बनाई। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी जवानों और शहरियों को खराज अकीदत। कहा, शोहदा हमारा फ़ख्र हैं और उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा।
लाहौर में बसंत का जोशो खरोश है। मजीद बता रहे हैं अशरफ ननका। बसंत और मौसीकी लाज़िम व मलजूम, बसंत के रंग में रंग गए लाहौर के मुकामी होटल में शरीक मेहमान। गुलकार कामरान लाहौरी ने बसंत के गीत सुनाए, हाजरीन ने भंगड़ा डालकर गाने को एंजॉय किया। महफिल ने जोर पकड़ा तो कामरान लाहौरी मजीद गाने सुनाने पर मजबूर हो गए। गुलकार मेगा ने जब ढोल की ताप पर अपने गीत सुनाए तो शायकीन झूम उठे। बसंत के रंग बच्चों के संग भी रहे। अशरफ ननकानवी, जियो न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब पतंगबाजी के शौकीन कहते हैं पतंगें और डोर इतनी महंगी है, क्या करें। मजीद बता रही हैं हफ्सा उस्मान। बिल्कुल, इस वक्त हम मोची गेट से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। बसंत आने में चंद ही रोज बाकी हैं, वक्त कम रह गया, मुकाबला बहुत सख्त है। लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मोची गेट में मौजूद है। डोरे गुडियां सब ले रहे हैं, पतंगे ले रहे हैं। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे बताएं क्या कितने के लिए आप? 500 रुपए का फी पीस है, 30,000 रुपए के गुड्डे हैं इस टाइम मेरे हाथ में। मैं ये कहना चाहूँगा मरियम नवाज से, अगर उन्होंने ये बसंत खोली है ना तो गरीब से गरीब अवाम भी ये बसंत मनाए। अब मेरे ख्याल से मैं तो ले सकता हूँ, ये ले सकता है, वो ले सकता है, ये छोटा बच्चा अगर गरीब है ये क्यों नहीं लेके उड़ा सकता। 25,000 रुपए का पिन्ना मिल रहा है जो कि आज से पहले 3-4,000 रुपए में मिल जाता था। अब 25,000 रुपए का पिन्ना मिल रहा है जिसमें पूरा 1.5 पीस भी नहीं है। फैसलाबाद से है, हमारे फैसलाबाद में बैन की हुई है। मरियम नवाज को चाहिए कहते हैं, हमारे फैसलाबाद में कहता है वो दे ज्यादा मना सके बसंत को अच्छी तरह। मरियम नवाज ने बसंत खोली है लेकिन पैसे होंगे तो लेंगे ना, पैसे नहीं है ना। वैसे मरियम नवाज जिंदाबाद। सभी लोगों का यही कहना है कि डोरे और पतंगे महंगी बहुत ज्यादा कर दी हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनकी कुव्वत खरीद बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर है। जी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान लाहौर में यौम यकजहती कश्मीर की रैली से खिताब कर रहे हैं कि उनकी घरों को ताराज किया जा रहा है और कोई आवाज उठती है तो उसको वो कत्लेआम करते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं, आबादियों पर हमला आवर होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत उनका मुकदमा नहीं पेश कर रही। पूरी दुनिया में जिस तरह कश्मीरियों के हवाले से बात होनी चाहिए और भारत को बेनकाब होना चाहिए, वो काम नहीं किया जा रहा। और यही वजह है कि भारत अपने कदम आगे बढ़ाता चला जा रहा है। ये अलग बात है कि जब उसने इंतहा कर दी और पहलगाम का झूठा वाकया किया और पाकिस्तान पर हमलावर हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से जो जवाब गया, उस जवाब में उसकी तबीयत तो साफ की है, लेकिन उस जवाब के बाद जो काम होना चाहिए था, उस शानदार फतह के बाद उसका जो तसलसल होना चाहिए था, वो ट्रंप के धोखे में आकर या उसकी आशीर्वाद हासिल करने के चक्कर में हम आगे नहीं बढ़ सके हैं। बात इतनी काफी नहीं है कि ट्रंप अपनी तकरीरों में ये कह दे कि भारत के इतने जहाज गिरे थे। हमें ये बताया जाए कि जब जंगबंदी की गई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि ट्रंप सालिसी करेगा। ट्रंप ने अब तक सालिसी क्यों नहीं की? और अगर सालिसी होगी तो उसका एजेंडा क्या होगा? हम किसी ऐसी सालिसी को नहीं मानते जो कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के खिलाफ हो। हम किसी ऐसी सालिसी को नहीं मानते जो उनके बुनियादी राइट के खिलाफ हो, सेल्फ डिटर्मिनेशन के खिलाफ हो। अगर उसके खिलाफ कोई सालिसी की जाएगी उसे किसी सूरत में पाकिस्तानी कौम तस्लीम नहीं करेगी। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब जंगबंदी की गई थी तो उस वक्त कहा गया था कि ये पानी का मसला, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला हम हल करेंगे और भारत ने जो हमारे पानियों पे कंट्रोल हासिल किया है उसको हम खत्म कर देंगे। हमसे कहा गया था कि कश्मीर पे बात होगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन अब 8-9 महीने के बाद भी कोई पेशरफ्त इस सिलसिले में नहीं हो रही। बल्कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान लाहौर में यौम यकजहती कश्मीर की रैली से खिताब कर रहे हैं, आपने मुलाहिजा किया।